क्योंकि सबको मैं भाता हूँ। पिक्चर लगी है, पिक्चर देखो, अदाकारों को छेड़ो ना छोरे। तुझ में कमी है, क्यों करता बहस, इन बातों को छोड़ो ना छोरे। तू बस एक फैन है, घूम इन गानों पे हवा तो देना तू छोरे। But it's not like trading अलग वस्तु stock investing is like લોંગ ટર્મ માટે હા એ જ બટ લોંગ ટર્મ માટે બી એના કરતાં શોર્ટ ટર્મ માટે બી તમને રિટર્ન્સ એવી રીતના મળી જાય ને. બસ સમજો કે 1 મંથમાં હમણાં વચ્ચે ટ્રેવિસ સ્કોટ શૂઝ ખબર ટ્રેવિસ સ્કોટ તો એ નીકળ્યા હતા. તો અત્યારે એ નીકળ્યા હતા 15 to 20,000ના આસપાસ નીકળ્યા હતા. તો અત્યારે એની કિંમત કંઈક 2 લાખ છે. 2 લાખ એ બી ખાલી 10 મંથમાં 10 મંથ કે 6 મંથના આસપાસ. તો એનું રિટર્ન પર્સન્ટેજ તમે જોશો તો ગણી શકો કે કેટલું 15,000 તો 2 લાખ એટલે 1,85,000 જેટલું તમારું પ્રોફિટ કહેવાય. એ પણ આટલા મંથમાં. દેટ્સ બિગ ઇનફ. અગર તમે 4-5 પેર ખરીદી નાખો તો તમારું આખું વર્ષ નીકળી જાય એમાં. દેટ્સ વોટ આઈ કે થ્રિફ્ટ સ્ટોર્સ બધા હોય છે આના માટે. હા સ્ટોર છે અમારું પોતાનું જ છે. રીસેલિંગ અમે કરીએ છીએ અર્બન સ્નીકર. હા વડોદરા જ બેસશો. હા સ્કેન કરી શકો છો અમારું અર્બન સ્નીકર. અત્યારે સ્ટાર્ટઅપ જ કરી રહ્યું છે બટ એટલીસ્ટ અવેરનેસ પહેલાં માટે કે સ્ટોક અને સ્નીકર્સ આમ ઇન્વેસ્ટ કરી શકાય. જેમ કે જૂતાને લોકો અત્યારે ખાલી પહેરવા માટે જ ગણે છે, જ્યારે એવું હોતું નહીં. તમે ઇન્વેસ્ટ કરીને થોડા ટાઈમ પછી એને સેલ કરીને પણ વચ્ચેનું કમિશન કમાઈ શકો છો. જેમ કે અમારું પણ અર્બન સ્નીકમાં છે ને, તો તમે કોઈ જૂતા લાવો બરાબર, તમને ખબર ના હોય કે લોકો જો કસ્ટમર જોડે કેટલા કમ્યુનિકેટ કરે, કઈ રીતે એને સેલ કરીએ, તો તમે અર્બન સ્નીક પર સેલ કરી શકો, કન્સાઇન કરી શકો તમારા જૂતા એમને આપીને. તો એ લોકોને બીજને પ્રોજેક્ટ કરે વસ્તુ. એટલે તમારે એટલું નહીં બહાર તમારે પબ્લિક જ્યારે અમારા ઓડિયન્સ જોડે કનેક્ટ કરે એટલે તો કસ્ટમર મળી આવે. જેમ કે તમે થોડું એવી રીતે એની કન્સાઇનમેન્ટમાં હાઉ ડુ વી નો કે આ ઓરિજિનલ છે? ઓરિજિનલ જેમ કે આ ઓરિજિનલ છે. અગર આપણે સમજો કે જેમ કે આ શૂઝ છે બરાબર, આની સ્પેશિયાલિટી આપણે જોઈએ તો આનું ટીક છે. આની જે અંદર એ છે ને, અમુક જે ફેક હોય ને, ફેક એ જ્યારે ફેક હોય ને તેનો પ્રોપર ઓરિજિનલ ના બને એ કાર્ય અમુક ખામી ના કરે. જેમ કે આના સિમ્બોલ, આનું મટીરિયલ તમે ટચ કરી શકો છો, જોઈને જ ખબર પડી જાય એના ઓરિજિનલ હશે. બીજું કે આનું બોક્સ, એ નાનું બોક્સ પણ જોઈ શકો. એની ડિટેલિંગ હોય, જેમ કે અમુક છે ને ડિટેલિંગ પર બોક્સના ઉપર ડિટેલિંગ પર ડિપેન્ડ કરી હોય એ કઈ ટાઈપનું ડિટેલિંગ છે. સમજો કે કોઈ તમારી પાસે પડ્યા હોય ભાઈ, અચાનક ઇન્વેસ્ટ કરીને સારા શૂઝ આવતા હોય તો તમે ઇન્વેસ્ટ કરીને 1-2 મહિનામાં સેલ કરો. જેને સેન્ડલ હા એ કન્સાઇન કરવા હોય, તમે લઈ તો લીધા જૂતા બટ તમારે કસ્ટમર ના મળતા હોય તો તમે કન્સાઇન કરી શકો. એ તમને જેમ શૂઝ સેલ થઈ જાય તરત તમે પેમેન્ટ કરો. कि आप क्या प्रीफर करो, क्या आप जूतों में इन्वेस्ट करना प्रीफर करोगे कि या फिर आप एक स्टॉक मार्केट में या कोई स्टॉक लेने में प्रीफर करोगे? तो ये एक्चुअली ये जूतों की वैल्यू अभी 20,000 में ऐसे रिटेल से नाइकी के थ्रू निकली थी. तो अभी उसके बाद ये जूतों की वैल्यू मार्केट में जैसे एक लिमिटेड पेयर के साथ आई ना, तो उसकी डिमांड बढ़ी तो ऑलमोस्ट ये प्राइस 30-35,000 तक गई. तो और जो स्टॉक्स की वैल्यू का आप तो जानते होंगे, स्टॉक्स की वैल्यू डे बाय डे 10-20% रिटर्न देती है. इसने भी कोई 14% जैसा रिटर्न दिया. तो आप क्या प्रीफर करोगे, जूतों में इन्वेस्ट करना या फिर एक स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना? जूतों पर ओके. तो आप ऐसे जूतों में कैसे, क्यों ऐसे प्रीफर करोगे ऐसे? मतलब बिजनेस तो दूसरा है, शौक भी पूरे करने जरूरी है लाइफ में, इसलिए. और आपको ये जूतों में एक स्पेशलिटी भी है कि अगर आप जूते पहनते भी हो और ये थोड़े खराब हो जाते, थोड़े मैले भी हो जाते हैं, या फिर एकदम प्रॉपर पीस में रखते हो तो आप उसको वापस रीसेल भी कर सकते हो. अगर 20 में आपने लिए तो आप 18, 19 या 14 तक जैसे आपने यूज़ किया हो वैसे आप प्रीफर करोगे ऐसे जूते बाय करना अगर आपको मिलते होंगे तो? जैसे हमारा बिजनेस है अर्बन स्नीक करके, तो अगर आपको उसमें से बाय करना हो तो आपको सारे टाइप के जूते मिल जाएंगे उधर वैसे. थैंक यू. કરો અગર તમને પૂછે કે તમે સ્ટોક્સમાં If you are preferring my end, I will prefer stock only. સ્ટોક Because the reason is because we हमारी जो अभी एज है, we are crossing 30 plus. Okay, this is basically suitable to 20 to 25 years age period. So that's why I am preferring stock only. બટ આમાં કેવું છે કે સ્નીકર્સમાં આપણે સમજો કે તમે પહેરતા ન હોય. જેમ કે અમારા બી ખાસા બધા ફ્રેન્ડ્સ છે જે લોકો પહેરે ના, બટ એને કેવું થોડા ટાઈમ માટે લઈને પછી વેચે, રીસેલ કરે. રીસેલ સ્ટાર્ટિંગમાં બી જોયું હતું કે આઈ થિંક સ્નીકરની બ્રાન્ડ માટે લાયેલા હતા, રીસેલ માર્કેટ બી હોતા છે. તો અમારું બેઝિકલી અર્બન સ્નીક કરીને નામ છે. અમે રીસેલિંગ બિઝનેસ કરે છે જોર્ડન્સનું, નાઇકના શૂઝનું.
understand. તો અમે લોકો પાસે જાણવા માંગે છે કે તમે શું પ્રિફર કરો અગર આઈ થિંક યુ બી કરી આઈ નો શકો કે આ જે સ્નીકર્સ છે એ લિમિટેડ એડિશન આવતા હોય છે Limited અને edition. જસ્ટ વિધિન 5 to 10 સેકન્ડમાં સેલ આઉટ થઈ sell out જાય થઈ છે આઈ નો કે આની ડિમાન્ડ બી વધારે છે ઇવન રીસેલિંગની ડિમાન્ડ બી ઓર વધારે હોય છે હા I એટલે know. એવું હોય तो आप क्या प्रीफर करोगे अगर जूते बाय करना या फिर स्टॉक्स बाय करना स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट क्योंकि वो आगे जाके बढ़ेगा बढ़ेगा इंटरेस्ट मिलेगा बट उसमें 50-50 चांसेस होते हैं कि लॉस होने के भी चांसेस होते हैं ऐसा बट इसमें कैसा होता है अगर आप आपकी चॉइस भी है आपको साइज़ या फिर कुछ भी आप गलत ले लेते हो इन केस तो इसमें आपका मार्जिन तो उतना निकलेगा अगर 18,000 आपने लिए आपको 18,000 पे बैक तो हो ही जाएंगे अगर वो लिमिटेड पेयर्स है तो स्टोर्स में तो बात ठीक है लेकिन ये लेके लॉस तो मिलेगा क्योंकि एक बार पहना 2 बार पहना हाँ। फिर बाद में इसका तो कुछ वैल्यू है ही नहीं 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 स्टॉक मार्केट है वो तो आगे जाके बढ़ेगा या लॉस जाएगा लेकिन बढ़ा तो इंटरेस्ट तो है ना बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है और अगर आप सही शूज़ प्रीफर करते हो आप सही जूते प्रीफर करते हो तो उसकी वैल्यू भी ऐसे बढ़ती है और जबकि स्टॉक मार्केट की एक परसेंटेज तक 100%, 1200%, 200% इतनी बढ़ेगी पर जब क्या अगर साइज़ और शूज़ परफेक्ट सिलेक्ट करें ना तो आपके जो शूज़ की वैल्यू है वो 1000% से भी कभी कभी इंक्रीज़ होती है या फिर 150 या 200% से भी इंक्रीज़ होती है इसमें ऐसा है कि आपको भी एनालिसिस करनी पड़ती है ऐसे स्टॉक मार्केट की तरह इसकी तरह फिर अब आपका ऐसे कैसा प्रेफरेंस है कि आप जूते प्रीफर फिर भी करोगे कि इसके बाद भी कि नहीं ये तो जूते पसंद है नहीं है कि पसंद है पसंद है तो मैं तो यही सिलेक्ट करूँगा समझ रहे हो आप समझ रहे हो कि आप हमारे पास लेके आए तो हम आपको उसकी वैल्यू बताएंगे कि नहीं इसको आप इतने में बेच सकते हो लेकिन आप कस्टमर के साथ तो हर जगह पे थोड़ी ना जाओगे तो आप हमारे पास उसके लिए आपको हमारे पास कंसल्ट करो तो कंसल्ट करोगे तो हम वो हमारे क्या सके पब्लिक के साथ बात करते हैं थोड़ा ऑडियंस बेस भी है हमारा कस्टमर बेस है तो वो लोग हमारे पेज पे दिखेंगे तो प्रोडक्ट दिखेगा तो दिखेगा बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है कि अगर आपके अंदर भी अगर शूज़ अगर लिए ऐसा समझो कि आप पहनते नहीं हैं जैसे कि ये जूते हम पहनते नहीं हैं लेकिन हमने क्या लिया है अब इसको फिर जब सेल करेंगे 35,000 तो वैसा आप भी इसको इन्वेस्टमेंट तौर पे ले सकते हो तो स्टॉक में प्रॉब्लम क्या होता है कि लोग ले लें लेकिन लॉस हुआ तो प्रिडिक्शन है ना जबकि इसमें क्या जाती है आपने जितने में लिया उतना तो मिल जाएगा ना जितना आपका सेफ है कोई लेक्स इतना ज़्यादा तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखे नहीं जाएंगे आप स्टॉक में तो स्टॉक करते हो मार्केटिंग स्टॉक मार्केट क्या है स्टॉक में कैसा रिस्क ज़्यादा होता है अगर नीचे गिर गया तो क्या करेंगे पैसे तो डूब गए जबकि इसमें तो जितना अपना पैसा है उतना तो अपने को मिल जाएगा एटलीस्ट वहाँ पे और अगर आपके पास सही पैर होते ना वो जो ट्रेविस स्कॉट जूते हैं वो 15,000 जब इसके बाहर जब बिकते तो बहुत अच्छी प्राइस है जैसे 1 लाख का रिटर्न 100% टू 200% भी कोई जूते पे रिटर्न मिल जाता है वो भी ऐसा नहीं कि बहुत लॉन्ग 5 साल रखने के बाद 1 ईयर 10 मंथ में भी वो चीज़ आ जाती है रिटर्न जूते लेके वापस बेच भी सकते हाँ मिल सकते हैं तो ये सही रीसेलिंग मार्केट में और अगर आप समझो कि आप कस्टमर के पास नहीं जाते तो आप हमें पास कंसल्ट कर सकते हैं तो हमने जूते लिए ये आपने बाई किए समझो कि ये सही हमने चेक किए कि हम थोड़ा चेक करते हैं कि ओरिजिनल क्योंकि हम कस्टमर को देना था ऐसे ही तो वो चेक करके फिर हम आपके जूते डिस्प्ले में करेंगे तो कस्टमर लोग देखेंगे तो वो लोग अच्छे लगेंगे तो वो लोग हमारे पास से बाई करें रेट से कि आपको उतनी मेहनत ना करेंगे वो उसको कंसाइनमेंट बोलते हैं आपका एक क्वेश्चन था जो मेरे माइंड में अभी भी है कि ये जूते 2 बार पहने 3 बार पहने फिर इसकी वैल्यू करी एक्चुअली इसमें क्या होता है अगर आप मेंटेन करके रखते हो जूते और आप इसको संभाल के रखते हो भले आप पहनते हो 3 बार 10 बार या फिर 1 साल तक भी पहनते हो बट ये जूते की वैल्यू कभी जाती नहीं है आपको कोई ना कोई रिटर्न तो देंगे हाँ चाहिए समझो कि आपने ये जूते बड़ा हमने 1970 में थे हमने 2-3 बार पहने तो फिर आप जब इसको वापस बेचने जाओगे ना तो एटलीस्ट आपको 14 या 12,000 तक आप मिल सकते हैं नहीं मिले मिले ऐसा वैसा मतलब कि आप पहनो भी खराब बेच भी सकते हो ऐसा होता है